دل کے کمزور مفتی عبدالقوی خاتون کو دیکھ کر پھر کمزور پڑ گئے. پہلے قندیل پھر چھنایا, اس بار دل نادیہ کو تھما دیا. منگنی کی تقریب میں گلوکارہ پر نوٹ اڑائے, خوب ٹھمکے بھی لگائے. ثقافت و تہذیب و تمدن کے حوالے سے خوشی کے رسوم ہو, شریعت اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتی بلکہ اس میں توسع پیدا کرتی ہے. اسی طرح رنگ ڈالنا اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے. شریعت ثقافتی معاملات میں شرکت سے نہیں روکتی, ایسی محفل ہمارے یہاں جائز ہے. مفتی عبدالقوی نے خود کا اقدام جائز قرار دے دیا. مولانا طاہر اشرفی کی شدید تنقید, کہا مفتی صاحب کو شرم آنی چاہیے, شریعت کو کہاں لا کر جوڑا. فوٹیج جھوٹ, گواہ جھوٹے, سارے بیانات بھی غلط. سی ٹی ڈی اہلکاروں نے واضح سچ کو جھٹلا دیا. سانحہ ساہیوال کے ذمہ دار قاتل اہلکار فائرنگ سے ہی مکر گئے. جی آئی ٹی کو بیان میں ملبہ موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں پر ڈال دیا. کہا گاڑی میں بیٹھے افراد اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے. ملزمان کو بچانے کی کوشش یا انصاف کے لیے کرنا ہوگا طویل انتظار. سی ٹی ڈی اور پنجاب پولیس کا فورنسک لیبارٹری سے عدم تعاون. سانحے کو 12 روز گزر گئے لیکن اہلکاروں کا اسلحہ تاحال لیبارٹری کو موصول نہیں ہوا. واقعے میں زیر استعمال گاڑی کا فورنسک معائنہ جاری, رپورٹ آنے میں مزید 2 روز کا وقت لگے گا. سانحہ ساہیوال کے متاثرین عدالت پہنچ گئے. مقتول خلیل کے بھائی جلیل کا لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ, جی آئی ٹی کے خلاف درخواست دے دی. مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کو کالعدم قرار دینے اور سانحہ کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کی استدعا. چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا وزیر اعظم عمران خان کو خط. سانحہ ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ. رحمان ملک نے جے آئی ٹی کی رپورٹ مسترد کر دی. قائمہ کمیٹی کی رپورٹ ایوان بالا میں پیش. وزیر اعظم عمران خان کا پاکستان کو ترقی پذیر ممالک کے لیے مثال بنانے کا عزم. بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی نفع ڈالر کے بجائے روپیے میں لیں. اب دنیا میں سبز پاسپورٹ کی عزت ہوگی. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو بھی سیاحت کے ذریعے کنٹرول کرنے کا عزم. آج پالیسی میں جو چینجز آپ کی ہیں کہ پہلی بار ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ حکم دیا ہے منسٹری آف ریلیجس افیئرس کو کہ اس دفعہ جو حاجی ہیں ان کو ایک مثالی سہولتیں جو ہیں وہ ملنی چاہیے. وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2019 کی منظوری دے دی. حاجیوں کو سبسڈی دینے سے انکار. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں رواں سال حاجیوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. کوئٹہ سے براہ راست حج پروازیں چلیں گی. اب ان حکمرانوں کی جو ہے وہ فائلیں جو ہیں وہ تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں نمبر گیم کے حساب سے تو اس حکومت کو گرانا جو ہے وہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. حکومت کے خلاف نون لیگ فرنٹ فٹ پر آ گئی. لیگی رہنما نے حکومت گرانے کا اشارہ دے دیا. رانا ثنا کہتے ہیں فائلیں تیار ہونا شروع ہو گئیں. نمبر گیم سے حکومت گرانا بڑی بات نہیں. گورنر پنجاب چودھری سرور کا پلٹ کر وار. کہا 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں, حکومت مدت پوری کرے گی. کوئی مڈ ٹرم الیکشن نہیں ہوگا. ہماری حکومت جو ہے انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گی. کوٹ لکھپت کے قید خانے میں اپنے قائد سے متوالوں کی ملاقات. نواز شریف اسیری سے نکلنے کے لیے بے تاب. کہتے ہیں جلد عوام میں ہوں گا. صحت سے متعلق بھی آگاہ کیا. بولے ڈاکٹر کہتے ہیں میرا دل بڑھا ہوا ہے. میرا دل تو ویسے ہی بڑا ہے. پرانے لیگی ساتھیوں کو ملاقات کے لیے کافی جتن اٹھانا پڑے. سول ایویشن اتھارٹی میں 55 ارب روپے کی بے قاعدگیوں کا انکشاف. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں رپورٹ پیش. تحقیقات کے لیے 2 ذیلی کمیٹیاں تشکیل. معاملے پر چیئرمین کمیٹی شہباز شریف کا اظہار حیرت. سیکریٹری قانون ڈی جی ایف آئی اے اور ایم ڈی پیپرا کو بلا لیا. شہباز شریف اور نون لیگ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے شیخ رشید پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آنے کو تیار. کہتے ہیں دونوں بھائی اور دونوں خاندان ڈیل میں ناکام ہو گئے, اب ڈھیل چاہتے ہیں. گھبرانا نہیں, آ رہا ہوں. شہباز شریف کو للکار. بولے کرپٹ لوگوں کی سیاسی نسل کشی کریں گے.
पार्क हड़प हो गए, रफाही प्लॉट्स पर प्लाजा बन गए। कब्रिस्तानों पर कब्जा हो गया, नैब नहीं बता रहा प्लॉटों की फरोख्त से किसका नुकसान हुआ। चाइना कटिंग केस में सिंध हाई कोर्ट नैब वकील पर बरहम, रिमार्क्स दिए, समंदर तक बेच दिया गया और कहते हैं किसी का नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सस्ते घर के नाम पर लूट मार, 296 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का इंकशाफ, FIA मुतहर्रिक, कार्रवाई की तफसील सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मुल्क की मईशत का बोझ अब गधे उठाएंगे, पाकिस्तानी डोंकी बैरून मुल्क से डॉलर लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गधों की फार्मिंग का फैसला, गैर मुल्की ताउन से 3 साल में 80,000 गधे बरामद किए जाएंगे। शाह महमूद और मीर वाइस के राब्ते पर भादरी एतराज मुस्तरद, भारतीय हाई तलब अंदरूनी सियासत में पाकिस्तान को इस्तेमाल ना किया जाए, कश्मीरियों को हिमायत हर हाल में जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने साफ कह दिया, अफगान तालिबान अफगान हुकूमत का दाखिली मामला है, उम्मीद है फरीकैन मिलकर मसाइल हल कर लेंगे। अमन का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, एक लुक़मे में हाथी नहीं खा सकते। अफगानिस्तान में सूरत हाल गंभीर है, हसास बातचीत की तरह हर चीज़ पब्लिक नहीं की जाती। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का अफगान अमन अमल से मुतालिक बयान, कहा एक बड़ी जद्दोजहद का पहला हिस्सा तय हुआ है, इसको बुनियाद बनाकर समझ लिया गया कि हमने मुआहिदा तय कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल के कमजोर मुफ्ती कवी खातून देखकर फिर कमजोर पड़ गए, पहले कंदील फिर शनाया और इस बार नादिया पर दिल आया। जी हाँ बिल्कुल, और मुल्तान की ही ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये तकरीब हुई जहाँ पर खूब नोट निछावर किए गए, माहौल बना, तो मुफ्ती कवि ने डांस फ्लोर पर भी एंट्री दी और खूब ठुमके भी लगाए। सिर्फ यही नहीं, मुफ्ती अब्दुल कवि शानदार परफॉर्मेंस पर गुलकारा नादिया हाशमी को तालियां बजाकर दाद भी देते रहे। मुल्तान में शादी की इस तकरीब का इनेकाद किया गया था जिसमें गुलकारा नादिया हाशमी ने आवाज का जादू जगाया तो मुफ्ती कवि के दिल के तार बज उठे और गुलकारा पर खूब नोट भी निछावर किए। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है आज न्यूज के नुमाइंदे नासिर ज़हीर। नासिर, जरा बताइएगा ये मामला है क्या, ये कौन सी तकरीब है और मुफ्ती साहब कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस तकरीब को? जी बिल्कुल, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब क्योंकि हर दिल अजीज शख्सियत है और मुल्तान की तकरीबात की जो है ये शान होते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा हैं खालिद जवेद वड़ाइट, जिनके बेटे की तकरीब थी, मेहंदी का फंक्शन था, वहाँ पर जो है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब भी मौजूद थे और वो वहाँ पर मौजूद थे। मुल्तान की मकामी सिंगर हैं जो नादिया हाशमी, उनकी जानिब से एक गाना पेश किया जा रहा था सराइकी के अंदर वो सॉन्ग था, जिस पर जो है खूब दाद जो है उन्होंने समेटी। मुफ्ती अब्दुल कवी ने जो है खूब दाद भी दी उनको और उनके ऊपर नोट भी निछावर किए, जिसके बाद जो है तकरीब जारी रही और मुफ्ती अब्दुल कवी ने इस तकरीब के अंदर जो है बाकायदा डांस भी किया और इस खुशी के अंदर जो है तहरीके इंसाफ के दीगर रहनुमा भी उनके साथ झूम रहे थे। जी हाँ बिल्कुल, नासिर ज़हीर हमें तफसीलात बता रहे हैं। ये एक तकरीब है और जिसमें हम देख सकते हैं कि मुफ्ती अब्दुल कवी इस तकरीब में मौजूद हैं और गुलकारा गाने गा रही है जिसके साथ वो रक्स करते नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर इन्होंने नोट भी निछावर किए हैं। इसी मामले पर बात कर लेते हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से। बहुत शुक्रिया, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, आपका मौक़िफ़ भी जानेंगे और इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे मुफ्ती ताहिर अशरफी साहब से। और अब्दुल कवी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस तकरीब के बारे में क्या आपकी राय है, आप यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से आप इसमें शिरकत कर रहे हैं? पहले तो मैं डांस नहीं कर रहा, दूसरे नंबर के ऊपर ये महफिल मौसीकी है, यानी जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि महफिल सिमा है और हमारे बहुत ही मेहरबान दोस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत नामवर कायद, उनके बेटे की शादी की मुनासबत से मंगनी की महफिल है। इस्लाम मुआशरती तौर पर उस इलाके की जिस कदर सकाफत हो, तहजीब हो, तमद्दुन के हवाले से खुशी के रसूम हो, शरीयत उसके बारे में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा नहीं करती बल्कि उसमें तवज्जो पैदा करती है।
ठीक है, अब्दुल कवी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ताहिर अशरफी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ताहिर अशरफी साहब, आपने मुफ्ती साहब की बात सुनी, आप क्या कहेंगे इस पर? ये काबिल शर्म बात है। मुफ्ती साहब को शर्म आनी चाहिए, अपने गलत कामों को शरीयत और सीरत और नात से नहीं जोड़ना चाहिए। तो महफिल में शिरकत की इजाजत है, अगर कोई वहां पर कपड़े उतार के फिरना शुरू कर दे, इसकी तो इजाजत नहीं है ना। देखो, ये अगर मकामी रस्म और रिवाज या किसी मकामी तकरीब में जाने की इजाजत का मतलब ये तो नहीं है कि आप वहां पर गैर शरई काम करके कहेंगे शरीयत ने इसकी मुझे इजाजत दे दी है। तो इसलिए जो कोई भी, मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया कि कोई भी करे, वो मुफ्ती हो, वो आलिम हो, अल्लामा हो, वो आम आदमी हो, जो काम शरीयत और कुरान और सुन्नत के खिलाफ है वो कुरान और सुन्नत के जी खिलाफ बिल्कुल। अब्दुल कवी साहब, ताहिर अशरफी साहब तो इस तरह की महफिल को नाजायज करार दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? जुमर की भी शरीयत में इजाजत है, अहले अरब खुशी के मौके पर। इसी तरह रंग डालना, इसकी भी शरीयत में इजाजत है। तो इस्लाम का ज़ाब्ता ये है कि खुशी के मौके पर जिस तरह के मकामी तहजीब तमद्दुन के हवाले से, सकाफत के हवाले से जो भी रसूम हो, उनकी शरीयत में इजाजत है। अगर मैं ये कहूँ कि इस तरह के पैसे डालना महफिल नात में भी जायज़ है, मिलाद पाक के जलसे में भी जायज़ है। जुमला मुफ्ती अब्दुल कवी साहब की तकरीर के दरमियान अगर कोई जुमला हुजूर की मोहब्बत के हवाले से आए, उस मोहब्बत इसमें डालना भी जायज़ है। ठीक है, ताहिर अशरफी साहब, आप जवाब देना चाहेंगे अब्दुल कवी साहब का, क्योंकि ये कहते हैं कि शरीयत में ये इजाजत है इसकी। मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब की एक अपनी सोच और फिक्र है, और मुझे नहीं पता कि वो महफिल मुसीबी थी या महफिल इज्तिमा था, लेकिन इस अंदाज से पैसों का फेंकना किसी भी तरह में हो वो दुरुस्त नहीं है। और अपने किसी अमल को नात जो है उसमें भी अगर कोई इस तरह से पैसे फेंके, हम तो उससे भी, आपने देखा मुफ्ती मुनीबुर रहमान से लेकर तमाम मुफ्तियान जो मुल्क के हैं, मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, तो वो मना करते हैं। और ये तशब्बो अच्छा नहीं है किसी भी सूरत जो है कि महफिल मौसीकी में जिस तरह पैसे फेंके जाते हैं आप उसी तरह नात में पैसे फेंके, तो वो भी गलत है। और मुफ्ती साहब को भी ख्याल आना चाहिए कि अपने गलतियां हो जाती हैं, या वो समझते हैं अगर ठीक है दुरुस्त है तो वो कहे मैंने एक अमल किया, उसको नात के साथ जोड़ना, उसको शरीयत के साथ जोड़ना, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा ये करना चाहिए। बिल्कुल। अब मुफ्ती कवी साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, ताहिर अशरफी साहब भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मुफ्ती नईम साहब। मुफ्ती नईम साहब, ये बताइएगा कि आपने दोनों हजरात का मौक़िफ़ सुना, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ने पहले ही बहुत सारी उनकी शिकायतें हैं, और आया वो मुफ्ती है भी या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी हरकत सकानात से मालूम होता है कि उनको मुफ्ती कहना ही तौहीन है। शरई एतबार से जो कि नाजायज हराम है, एक मुफ्ती ये काम कर रहा है तो मेरे नजदीक उसको मुफ्ती कहना ही जो है ये मुफ्ती की तौहीन है। हर आदमी अपने आगे मुफ्ती लगा सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि कतर मुफ्ती ना कहा जाए, और ना ही मीडिया ज्यादा जिसकी वजह से वो अपने आप को जो है बहुत कुछ समझने लगते हैं। ठीक है, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ताहिर अशरफी और मुफ्ती नईम साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। और जिस तरह से कि अब्दुल कवी साहब ने यही कहा कि शरीयत में ऐसी महफिल की इजाज़त है, मुफ्ती कवी ये कहते हैं कि अपनी गलतियों को शरीयत का नाम देना गलत है, ये कहते हैं ताहिर अशरफी, जबकि मुफ्ती कवी ये कहते हैं कि शरीयत में इस बात की इजाज़त दी गई है कि खुशी का अगर कोई मौका है, और अगर इस तरह का मौका है तो मजहब और जो हमारी सकाफत है वो इस बात की इजाज़त देती है कि अपनी खुशी का इजहार इस तरह से किया जा सके। लेकिन ताहिर अशरफी ये कहते हैं कि अपनी गलतियों को शरीयत का नाम देना इंतहाई गलत है। और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 59 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 73 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखी गई। और पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा।
बुलेटिन में अब्बास सानेह साहिवाल की, जिसमें बीच सड़क पर खून बहाने वाले एहलकार अपने किए से मुकर गए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के गिरफ्तार एहलकारों ने मुश्तरका तहकीकाती टीम को बयान रिकॉर्ड करा दिया है। बयान में एहलकारों ने गाड़ी पर फायरिंग से इनकार कर दिया है। एहलकारों का कहना है कि गाड़ी पर फायरिंग नहीं की, गोलियां सिर्फ जवाबी कार्रवाई के तौर पर चलाईं। सीटीडी एहलकार झूठे भी निकले, जीआईटी के सामने बयान से ही मुकर गए। गिरफ्तार एहलकारों सफदर, रमजान, सैफुल्लाह और हसनैन से तफ्तीश हुई। सवाल किया गया कि गाड़ी पर फायरिंग किसने की। सीटीडी एहलकारों ने फायरिंग से इनकार कर दिया। फिर सवाल हुआ, फिर कार में सवार अफराद कैसे हलाक हुए? जवाब दिया, मोटरसाइकिल सवार साथियों की फायरिंग से मारे गए। दोबारा सवाल किया, गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था? कहा कि हुक्म नहीं दिया, अपने दिफा में जवाबी फायरिंग की। सवाल और जवाब के बाद मुल्जिमान की शिनाख्त परेड मुलतवी कर दी गई। सीटीडी एहलकारों के बयानात ने तफ्तीश पर सवाल उठा दिए हैं।